Hello and welcome back to this new module. In the earlier module, we studied something about a quadrilateral. Types of quadrilateral means convex, concave, the number of sides, the relationship between the number of sides, the regular quadrilaterals, and so forth. Now here, in this new module, we are going to study something more about quadrilaterals. Types of quadrilaterals. So there are some standard quadrilaterals, right? Now, who is a quadrilateral? Quadrilateral is a four-sided closed figure. तो ऐसे बहुत सारे four-sided closed figure रहते हैं, जैसे कि kite, trapezium, parallelogram, square, rectangle, rhombus, all these are there, है ना? So if we just study them properly in a proper order, then it becomes very easy. Now, इस मॉड्यूल में मैं आपको जस्ट उसके प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, और आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोज प्रॉपर्टीज बिकॉज द न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ओनली. नाउ प्रॉपर्टीज मीन्स अगर सपोज कोई क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे. आप बोलेंगे सर उसके ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, राइट. व्हेन आई से हु इज अ पैरेललोग्राम, तो आप बोलेंगे सर एक पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो आप बोलेंगे सर रेक्टेंगल में भी पैरेलल रहते हैं. तो ऑल दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, then there is no need to remember also. You have to just gather the information, process it properly, and try to just concentrate what we are talking about. Now, the type of quadrilaterals में सबसे पहले we'll talk about trapezium. I think you got trapezium only, right? So trapezium. Now, trapezium is a quadrilateral because all this we are talking about is quadrilaterals only. So trapezium is also quadrilateral, but it has got a property. क्या property है? उसका definition itself. One pair of opposite side. One pair मतलब एक जोड़ी of opposite sides. They are parallel. If I am having a quadrilateral ABCD, this is a quadrilateral, right? In which if only one pair of एक जोड़ी of opposite sides they are parallel, then it will be called as a trapezium. Now here AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Now this symbol is used for parallel lines, right? So we say that AB is parallel to CD. So the other usual things remains with, since it is a quadrilateral. So we have got AC is one diagonal, DB is another diagonal, and everything, right? So if I just say every quadrilateral is a trapezium, it will be a false statement. But if every trapezium is a quadrilateral, it's a true statement, right? Now some important things. Now when I say AB is parallel to CD, so these two are parallel sides, AB and CD are parallel sides. So non-parallel sides कौन हो गए? AD and BC. ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में नहीं है, but still I would like you to know more about trapezium. अगर कोई trapezium में non-parallel sides अगर equal रहें, if non-parallel sides are equal, that means ऐसा जरूरी नहीं कि trapezium में non-parallel sides are equal. अगर वो equal रहे, then that trapezium is called as isosceles trapezium, right? And if a trapezium is isosceles, तो उसका और एक प्रॉपर्टी आता है कि उसके डायगोनल्स आर इक्वल, राइट? तो हमने क्या पढ़ा ट्रेपेजियम के बारे में? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल, राइट? सो सिंस इट इज अ क्वाड्रिलैटरल, all the properties of quadrilateral are true for trapezium. But who is a trapezium? Why should we give it a special name? So a trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides they are equal. यहाँ तक हो गया trapezium और उसका definition. Now special cases for trapezium. अगर
इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ए बी और सी डी तो पैरेलल साइड्स हो गए, तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हो गए, ए डी एंड बी सी. If these two non-parallel sides are equal, then the trapezium is called as isosceles trapezium. And in case of isosceles trapezium, the diagonals are equal, the base angles are equal. इतना डीप में नहीं जाना है आपको सिर्फ नाम मालूम होना चाहिए. Who is an isosceles trapezium? तो आप बोलेंगे सर जो ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं. Alright. Next, special type of quadrilateral is kite. Everybody knows about kite, है ना, especially Indians. हम Indians को kite से बहुत ही प्यार है करके. जनवरी में बहुत ज़्यादा प्यार आता है उसे kite से. Now kite is a quadrilateral. तो ट्रेपेजियम वाज आल्सो क्वाड्रिलैटरल. सो व्हाट सो इसका खुद का डेफिनेशन रहेगा. बट काइट इज अ काइट बिकॉज पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब पूरे चार हैं, है ना. एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले, मतलब कोई भी एक साइड को दो बाजू रहते हैं, एक ये भी रहेगा एक ये रहेगा. तो वन पेयर, यहाँ पे दिस पेयर दे आर कॉन्ग्रुएंट, हियर दिस पेयर इज कॉन्ग्रुएंट, राइट. So if I'm having A, B, C, D is a kite or will be called as a kite if the two pairs of adjacent sides are equal. That means if AB is equal to AD and CD is equal to BC. मतलब ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, that's it. Then that quadrilateral becomes a kite. उस quadrilateral को हम kite कहते हैं. Every kite is a quadrilateral. But every quadrilateral is not a kite. तो अगर ये kite है तो इसका खुद का प्रॉपर्टी रहेगा, राइट. प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं, एक बड़ा डायगोनल रहेगा और एक छोटा डायगोनल रहेगा. Now how will you find which diagonal is bigger and which diagonal is smaller? Now the diagonal जो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड्स के बीच में से निकलता है, ये और ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है, इसमें जो है दिस इज अ स्मॉलर वन और द डायगोनल व्हिच एमर्जेस फ्रॉम टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, मतलब DA एंड BA इक्वल है, DC एंड BC आर इक्वल. तो उसके बीच में से जो डायगोनल निकल रहा है दैट विल बी द लार्जर वन, राइट, लॉन्गर वन रादर. सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, बोथ दिस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मतलब द एंगल बिटवीन देम इज 90. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट. दैट मीन्स द बिगर वन, द लॉन्गर वन, इट डिवाइड्स द स्मॉलर वन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स द बड़ा जो डायगोनल है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्मॉलर वन, राइट. सो ट्रेपेजियम, व्हाई इज इट ट्रेपेजियम? देन उसमें टाइप क्या थे? इसमें ऐसा कोई टाइप नहीं है. काइट इज अ काइट, है ना. उसका डेफिनेशन है कि अगर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ काइट. इसके प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स आर, तो बड़ा डायगोनल जो है छोटे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स, राइट. अब मुझे कैसे याद है? लास्ट 25 years आई एम टीचिंग, तो मुझे याद हो गया. आपको 25 टाइम्स देखना पड़ेगा या 25 टाइम्स किसी को सिखाना पड़ेगा, राइट. देन यू, एक आपको मैं सिंपल सा ये बोलता हूँ, अगर आपके घर में छोटा भाई बहन कोई भी रहेगा तो ट्राई टू टीच देम वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस और टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ट्राई टू टीच द सेम थिंग टू देम. एंड बाई चांस अगर आप छोटे हैं बाकी सब लोगों से तो ट्राई टू टीच इट योर मॉम, राइट. या डैड के पास टाइम नहीं रहता इसलिए मॉम बोल रहा हूँ मैं. जिनके पास टाइम रहेगा, अगर दोनों के पास टाइम नहीं है तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को सिखाओ. सिखाने से दिमाग में बैठ जाता है ना. लोगों को लगता है कि टीचर्स बहुत होशियार होते हैं, तो होशियार नहीं रहते हैं. हम सिखा के हमारे माइंड में बैठ गया हुआ है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट काइट. ना इसके आगे हम जो करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन.
कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, इट इज पैरेललोग्राम्स। ना who is a parallelogram? तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो आप बोलेंगे सर काइट वाज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम वाज आल्सो क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। सो फर्क क्या है फिर, है ना? तो फर्क ये है कि इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel, A, B, C, D. Right? A, B, C, D is a parallelogram. The name itself suggests, क्या suggest कर रहा है कि parallelogram मतलब opposite sides are parallel, means AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Opposite sides are parallel, वो हो गया उसका डेफिनेशन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या फर्क पड़ता है बाकी चीजों से, क्या अलग है ये? तो बाकी चीजों से ये अलग है कि इसके अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सब उसके प्रॉपर्टीज हैं। बट हु इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अगर पैरेललोग्राम है तो उसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? तो प्रॉपर्टीज मीन्स उसके once it becomes a parallelogram, so it has got some speciality. क्या speciality है? Opposite sides are equal. That means AB is equal to CD. Not only parallel, they are equal also. Then AD is equal to BC. Opposite sides parallel हो गए, equal हो गए. Then opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C. Angle D is equal to angle B. अगर कोई quadrilateral पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे, एंड द लास्ट वन, द डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टिंग ईच अदर। मतलब ये डायगोनल इस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू CO। ये डायगोनल इस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, OD इज इक्वल टू OB। गेटिंग? दैट मीन्स अ पैरेललोग्राम, नाउ वंस अगेन स्टार्टिंग से, हु इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, बट बाकी भी क्वाड्रिलेटरल है। इसका क्या स्पेशलिटी है? तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर्स है ना, दो पेयर्स है, ये जोड़ी और ये जोड़ी। So both of them are parallel to each other. That means AB is parallel to CD, AD is parallel to BC. ये हो गया उसका डेफिनेशन। उसके प्रॉपर्टीज क्या हुए? अपोजिट साइड्स के बारे में है, अपोजिट एंगल्स के बारे में है और डायगोनल्स के बारे में है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस केस में? पैरेललोग्राम में। Now these things we didn't study in kite. काइट में ओनली जो बड़ा डायगोनल है छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, बड़ा वाला छोटे को करता है, लेकिन छोटा वाला बड़े को नहीं करता है, राइट? देन ट्रेपीजियम में ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ये हर एक क्वाड्रिलेटरल जो स्पेशल है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना है, बार बार उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको बार बार बोलना है। ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? ट्रेपीजियम में नथिंग इज अबाउट देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस थिंग्स, ओनली अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल रहे देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एंड इन दैट केस the diagonals will be equal, right? ये कुछ एक्स्ट्रा हम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया हुआ है।
But as far as parallelogram is concerned, opposite angles are equal, opposite sides are equal, and diagonals bisect each other. Right? Next special case is, मैंने देखो अभी ये डायग्राम तो मिटा दिया लेकिन पैरेललोग्राम को नहीं मिटाया, बिकॉज हम जो कुछ आगे के क्वाड्रिलैटरल पढ़ने जा रहे हैं ऑल ऑफ देम आर पैरेललोग्राम्स. राइट? सबसे पहले मैं आई टेक रोम्बस. अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. इसके पहले जितने भी मैंने डिफाइन किए थे मैंने बोला कि ऑल ऑफ देम वर क्वाड्रिलैटरल्स. राइट? इवन रोम्बस इज ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल. बट डिफाइन करते समय मैं हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम and parallelogram is a quadrilateral, therefore automatically rhombus is also a quadrilateral. But define कैसे कर रहा हूं मैं कि rhombus is a parallelogram. So all the properties of parallelogram will be true for rhombus also. इसका मतलब क्या है कि rhombus is a special type of parallelogram. Rhombus जो है it's a special type of parallelogram. Parallelogram is a special type of a quadrilateral. Right? So quadrilateral basic figure. Quadrilateral is a four-sided closed figure. So rhombus is also four-sided closed figure. Parallelogram is also four-sided closed figure. Rectangle, square, kite, trapezium, all of them are four-sided closed figure. All right. So rhombus को हम define कैसे करेंगे? Rhombus, not only rhombus. Second is rectangle, and third one is square. All of them are parallelograms. All of them are parallelograms. But a special type of parallelograms. So what is the speciality of rhombus? Rhombus is a parallelogram in which all four sides are equal. All four sides are equal. अब कुछ बच्चों के अंदर डाउट आया रहेगा, है ना, कि स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल. मैं आता हूँ स्क्वायर की तरफ आता हूँ, पहले हम इसको तरफ देख लेते हैं. सो व्हेन आई से रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर ट्रू फॉर रोम्बस. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऑलराइट? वो तो रहेंगे ही रहेंगे वो प्रॉपर्टीज. के अलावा, उनके अलावा इट हैज गॉट इट्स ओन प्रॉपर्टी. The diagonals are perpendicular bisectors of each other. Right? Diagonals are perpendicular bisectors of each other. मतलब when I say rhombus is a parallelogram, all the properties of parallelogram are true for rhombus. तो फिर rhombus parallelogram से अलग कैसे हुआ? पैरेललोग्राम में हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज अ रोम्बस. बट हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे. रोम्बस को हम प्यार से डिफाइन करेंगे. कैसे करेंगे हम? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. If it is a rhombus, any parallelogram is a rhombus, then it has got one more property other than parallelogram. Parallelogram के properties तो रहेंगे ही रहेंगे उसके साथ में. इसके अलावा it will have one more property, that is diagonals are perpendicular bisectors. Next comes rectangle. Rectangle is also a parallelogram in which all angles are equal or each angle is 90. डेफिनेशन सेम है ना. ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब 90 90 90 90 इक्वल है और हर एक एंगल 90 है, देन आल्सो इट इज ट्रू, है ना. सो हाउ कैन वी डिफाइन रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 और ऑल एंगल्स आर इक्वल. नाउ सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसको ट्रू रहेंगे. दैट इज opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. ये तो प्रॉपर्टी है ही है. बट फिर रेक्टेंगल की खुद की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज इट्स ओन प्रॉपर्टी? ये मेरा है, ऐसा प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स आर इक्वल. इन केस ऑफ रेक्टेंगल,
the diagonals are equal. Means A, B, C, D. Right? If I just join the opposite vertices, we will be getting the diagonals. So diagonals are equal. So अगर क्या rhombus में diagonals equal है? नहीं है. क्यों नहीं है? Because it is not a rectangle. It is a rhombus. क्या diagonals of rectangle are perpendicular bisector? नहीं. वो उसका property नहीं है. वो इसका property है. Right? And the last one, that is square. So square is also a parallelogram in which all sides are equal and all angles are also equal. मतलब मैंने जब स्क्वायर को डिफाइन किया तो आपको थोड़ा बहुत रोम्बस याद आया, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल याद आया. तो रोम्बस कैसे याद आया? रोम्बस का डेफिनेशन इज इट्स अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. इट्स अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल and all angles are equal. All angles are equal. That means square is a combination of rhombus and rectangle. How it resembles rhombus? All sides are equal. How it resembles rectangle? All angles are equal, or each angle is 90 degrees. So what can you say about the properties of square? It will have properties of parallelogram because everybody is a parallelogram here. That means parallelogram के properties जो हैं, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. ये तो common properties हो गए, right? इनके अलावा it will have a property of rhombus. Rhombus का क्या property था? Diagonals are perpendicular bisectors of each other. It will have the property of rectangle also. What is the property? Diagonals are equal. So इसके diagonals equal भी रहेंगे, perpendicular bisector भी रहेंगे. It will show characteristics of rhombus. It will show the characteristics of rectangle because it is a combination of these two figures. Now you understand why square को सबसे आगे लिया मैंने, है ना? सबसे last में लिया उसको मैंने. Because it is a अभी square. If somebody asks me who is a square, तो मैं बोलूँगा square is a rectangle, is a rhombus, is a parallelogram, is a quadrilateral. मतलब a quadrilateral, which is a parallelogram, which is a rhombus, which is a rectangle, is a square. मतलब square के अंदर सभी 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 properties आ गए. Now what you have to do is that आज मैं ये मॉड्यूल यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, है ना? तो ये मॉड्यूल ख़त्म होते ही जैसे ही आपने पढ़ लिया इसको, टेक्स्ट बुक निकालेंगे, देन ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपके साथ में डिस्कस किया है, the same properties they have given it in the textbook. Just go through them. Then एक बड़ा सा चार्ट बनाओ नोटबुक में, right? Give serial numbers, right? First one, second one, third one, ऐसे serial number. यहाँ पे quadrilateral, right? Quadrilateral कौन कौन से quadrilaterals हैं? सबसे पहले आपको quadrilateral ही एक quadrilateral है, right? Then ये quadrilateral types of quadrilateral में we have got kite, then we got trapezium, then we got parallelogram, then we had rhombus, then we had rectangle, then we had square, right? और यहाँ पे आप उसका definition लिखो, right? And then यहाँ पे आप उसके properties लिखो. You can use your textbook for writing all these things. You can use your textbooks, right? Now ये chart ये रहेगा कि quadrilateral का definition, a four-sided closed figure is called as a quadrilateral. Now इसके जो properties हैं, है ना? Angle sum property है, right? Exterior angle property है, getting a point? तो वो सब आप quadrilateral के बारे में लिखेंगे. फिर then kite के बारे में लिखेंगे. Kite is a quadrilateral in which adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal. That is the definition. फिर उसके properties, it has got two diagonals. The bigger one will bisect the smaller one, right? And they are perpendicular to each other. Then trapezium, same way, parallelogram, rhombus, rectangle, and square. Every day, just go through this chart. Every day for 3-4 days. Then you forget. आपको याद हो जाएगा ये. Getting a point? So
नेक्स्ट मॉड्यूल में जब मिलेंगे हम, तो विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट एक्सरसाइजेस, राइट? टिल देन, गुड बाय.